رابطہ نیوز، کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے گلبرگہ شہر کو دودھ کی اچھی اور اعلیٰ معیار میں پیداوار کرنے والا شہر کہتے ہوئے کیا خوشی کا اظہار۔ گلبرگہ شہر میں عوام کی اچھی صحت کے لیے ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم کی موجودگی میں بہترین صحت میلے کا کیا گیا انعقاد۔ گلبرگہ شہر میں واقع KKRDB آفس میں اجے دھرم سنگھ اور تعلیمی ماہرین کمیٹی نے مل کر اہم میٹنگ منعقد کرتے ہوئے تعلیم کے معیار کو اونچا کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اوقاف اینڈ مائنورٹی ویلفیئر منسٹر BZ زمین احمد خان نے HHS اور HMS پارکنگ لاٹ کے سنگ بنیاد کے کاموں کی کر دی شروعات۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون نرسنگانند کے خلاف گلبرگہ روزہ پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی FIR۔ گلبرگہ کارپوریشن مہانگر پالیکا کے نئے میئر یلپا نائیکوڑی کی موجودگی میں بغیر لائسنس کے بزنس کرنے والے اور پراپرٹی ٹیکس نہ بھر کر شاپس کو چلانے والے مالکوں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ آج کی اچھی بات، الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی، اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر یہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص اور اپنا ہے، لیکن وقت اور انسانوں کے رویے جلد ہی ہمیں یہ احساس ضرور دلا دیتے ہیں کہ کون ہمارے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور کون کتنا مخلص ہے۔ لہٰذا اپنے برے وقت میں خود سے جڑے ہوئے لوگوں کے رویے پر غور کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون اصل میں اپنا ہے اور کون اپنا ہونے کا ڈھونگ اور دکھاوا کرتا ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے گلبرگہ یادگیر بیدر کرناٹکا میں دودھ کی اچھی اور اعلیٰ معیار میں پیداوار کے چلتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جی ناظرین، ضلع انچارج اور دیہاتی ترقی پنچایت راج کے وزیر پریانک کھرگے نے دودھ یونین میں معیاری دودھ کی پیداوار کے لیے اپنی ستائش کا اظہار کیا جسے عوامی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چونکہ گلبرگہ کا دودھ اعلیٰ معیار کا اور عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے، اسی لیے پڑوسی ریاست مہاراشٹر نے اس کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب روزانہ 15,000 لیٹر دودھ یہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوآپریٹو یونین کو مالی طور پر تقویت ملی ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ کرناٹک بہبود میں ڈیری فارمنگ کو ترجیح دینے کا ہماری حکومت نے عہد لیا ہے اور ہماری حکومت ہمیشہ کسانوں اور خوراک پیدا کرنے والوں کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے اور ہم آنے والے دنوں میں ڈیری فارمنگ میں مزید کامیابیوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ گلبرگہ شہر کی عوام کی اچھی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر صحت میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ جی ناظرین، اس جمعہ کو یہاں ضلع کلکٹر کے دفتر کے احاطے میں ضلع انتظامیہ، ضلع پنچایت، ضلع صحت اور خاندانی بہبود محکمے کی قومی شہری صحت مہم کے تحت منعقدہ صحت میلے میں تقریباً 1,227 لوگوں نے مفت صحت چیک اپ سے فائدہ اٹھایا۔ بتا دیا جائے کہ یہاں گلبرگہ ضلع کلکٹر ہال میں موجود مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین اور دفتر پہنچنے والی تمام عوام کا ہیلتھ چیک اپ بالکل فری کیا گیا۔ خاص طور پر اس عملے اور عوام کا چیک اپ کیا گیا جو روزانہ دباؤ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر اس صحت میلے کا منعقد کرنا بڑا ہی اچھا ثابت ہوا۔ ساتھ ہی محکمہ صحت کے نگر آروگیہ کیندر کلینک، محکمہ آیوشمتی کڈوائی کینسر اسپتال سے آرتھوپیڈک ماہر امراض جلد، ماہر امراض نسواں، جنرل فزیشین، اینکولوجسٹ، ماہر امراض اطفال، دندانی ساز، ENT ڈاکٹرز نے مل کر یہاں پر عوام کی صحت کے متعلق الگ الگ قسم کے ٹیسٹ اور چیک اپ کیے۔ بتا دیا جائے کہ یہاں پر تقریباً 102 افراد نے فری لیب ٹیسٹ سروس کا فائدہ اٹھایا اور 130 افراد میں فری عینک چشمے بھی تقسیم کیے گئے۔
साथ ही तंबाकू नोशी करने वाले 39 अफराद की फ्री स्क्रीनिंग भी की गई और महकमा आईसी तकरीबन 214 अफराद ने यहाँ दुकान का दौरा किया और महकमा सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। नाजरीन को बता दिया जाए कि इस मौके पर फौजिया तरन्नुम ने 23 नवंबर तक मुनक्किद होने वाले इस तंबाकू फ्री यूथ मुहिम की तकरीब का अपने ऑटोग्राफ दस्तखत करते हुए आगाज किया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने सेहत मेले का इफ्तिताह करते हुए यहां पर मौजूद महकमा सेहत की पूरी टीम की बड़ी तारीफ की, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ यहां पर मौजूद तमाम आवाम का फ्री चेकअप किया। इस सेहत मेले में फौजिया तरन्नुम के साथ महकमा सेहत खानदानी बहबूद के गुलबर्गा डिविजनल को डायरेक्टर डॉक्टर अंबराया रुद्रवाड़ी, डॉक्टर शरण बसप्पा केतिनाल, डॉक्टर उमेश SR, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट RCH ऑफिसर, माहिर डॉक्टर्स विवेकानंद रेड्डी और महकमा सेहत का पूरा अमला मौजूद दिखाई दिया। गुलबर्गा शहर में KKRDB चेयरमैन डॉक्टर अजय धर्म सिंह की मौजूदगी में तालीमी माहिरीन कमेटी के साथ मिलकर गुलबर्गा KKRDB ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, KKRDB ऑफिस हॉल में तालीमी माहिरीन कमेटी और डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने मीटिंग मुनक्किद करते हुए कल्याण कर्नाटका खित्ते के तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाने के बारे में तबादला ख्याल किया। बता दिया जाए कि कल्याण कर्नाटका के स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे की तरक्की और KKRDB की क़ियादत में अक्षरा अनवीना स्कीम के तहत असातिज़ा लेक्चरार्स की भर्ती को खुसूसी तरजीह दी जा रही है। KKRDB चेयरमैन डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने इस मीटिंग से खिताब करते हुए ये तमाम जानकारियां दी और मजीद कहा कि तलबा को बाकायदा निसाब के साथ हुनर सीखने के मौके फराहम करते हुए मुसाबकती दुनिया में उन्हें कामयाब होने के लिए तैयार किया जा रहा है और हमारी मुख्तलिफ कोशिशों के नतीजे में हमें यकीन है कि आइंदा SC और PUC इम्तिहान के नताइज में नुमायां बेहतरी आएगी। डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने यहाँ पर मजीद कहा कि बोर्ड ने कल्याण कर्नाटक में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तालीमी शोबे की बेहतरी में सरमायाकारी की है और उनका अज़म है कि इस हिस्से के ज़िले को SLC में टॉप 10 में शामिल किया जाए और आने वाले दिनों में इसको लेकर बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। जी हाँ, इस जुमा को बोर्ड हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खिताब करते हुए डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने मजीद बताया कि मशहूर माहिर तालीम डॉक्टर गुरुराज करजगी की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है और डॉक्टर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कमेटी मेंबर के तौर पर रुद्रीशा, डॉक्टर हीरेमठ बेल्लारी के फादर फ्रांसिस और बीदर के शाहीन खिदेरा और महकमा तालीम के एक रिटायर्ड अफसर NB पाटिल मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ काम करेंगे। मजीद यहाँ पर बताया गया कि बच्चों की मजमूई तरक्की, असातिज़ा की काबिलियत और तालीमी मैदान में इंतजामी इस्लाहत के लिए समिति कल्याण कर्नाटका के हर ताल्लुक़े के स्कूलों का दौरा कर रही है और 3 महीनों के अंदर इसी के मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। गुलबर्गा शहर के राम मंदिर, गंज, सुपरमार्केट, सेंट्रल बस स्टैंड और मुख्तलिफ बारंगों के सर्कल्स पर बगैर बिजनेस लाइसेंस हासिल किए, प्रॉपर्टी टैक्स अदा किए बगैर कमर्शियल दुकानों को चलाने वालों पर कार्रवाई के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टडिंग कमेटी चेयरमैन, वार्ड मेंबरान, मुआजिज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, डेबिट कलेक्टर्स की मौजूदगी में प्रॉपर्टी टैक्स और बिजनेस लाइसेंस के हवाले से यहाँ खुसूसी मुहिम का प्रोग्राम चलाया गया और शहर के एशियन मॉल के अंदर कारोबारी लाइसेंस और जायदाद का कर्जा हासिल किए बगैर अदा न होने वाली कमर्शियल दुकानों पर टैक्स और बिजनेस लाइसेंस जुर्माने लगाने का काम जारी किया गया है और साइट्स पर बिजनेस लाइसेंस की दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा रही है। लिहाजा इसी के मुतालिक बता दिया जाए कि गुलबर्गा महानगर पालिका के ऑफिस नंबर 1, 2, 3 में बारंगियों के एक हिस्से के तौर पर जायदाद के मालिकान से टैक्स वसूली करते हुए कुल मिलाकर 27 लाख जमा होने की इत्तला मिली और प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस लाइसेंसेस के हवाले से इस मुहिम का प्रोग्राम मुसलसिल अभी भी जारी है। इसी के साथ ही बताया गया कि महानगर कॉरपोरेशन के मेयर ने स्टोरिंग कमेटी के चेयरमैन, वार्ड मेंबर्स, मुआजिज कमिश्नर्स और अमले की मौजूदगी में जोन ऑफिस 2 के तहत मुख्तलिफ दुकानों के कारोबार के इजाजतनामे पर खुसूसी प्रोग्राम मुहिम के हवाले से कुल मिलाकर 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया। दीन इस्लाम को लेकर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हर दूसरे दिन अपने मुल्क हिंदुस्तान में कई बार तशद्दुद और नफरत से भरी हुई बातें, गलत बयानी को सुनना दिल को तकलीफ पहुंचाता है और देखा जा रहा है कि हर दूसरा इंसान जो कि दीन इस्लाम के बारे में, इस्लाम मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन और अजीम ज़िंदगी के बारे में जिसे कुछ पता नहीं, वो अपना मुंह उठाकर ज़ुबान पर जो आए वो बक देता है, जो कि काबिले मजम्मत बात है।
लिहाजा प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ताला ने पूरे आलम के मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए रहमत बनाकर ज़मीन पर भेजा, उनकी शान में गुस्ताखी करना बड़ा ही गलत और मजम्मत से भरा हुआ घटिया शर्मनाक काम है। और इसी बात को उठाते हुए गुलबर्गा शहर के रोजा पुलिस स्टेशन के सामने कड़े अंदाज में एहतजाज करते हुए नरसिंहानंद गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 29 सितंबर के दिन गाजियाबाद के लोहिया नगर से तकरीर करते हुए नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब गर्दिश कर रहा है, उसी नरसिंहानंद के खिलाफ मौजूदा कांग्रेस लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स, अवाम ने मिलकर कड़े अंदाज में एहतजाज करते हुए FIR दर्ज करवाई और नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। जी हाँ, गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और जनाब फराजुल इस्लाम के हिदायत पर अपने शहर के मुस्लिम कायदीन, कांग्रेस लीडर्स, नौजवानों, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम ने मिलकर गुलबर्गा रोजा पुलिस स्टेशन के सामने रोड ब्लॉक करते हुए बड़े ही कड़े अंदाज में बड़ी देर तक नारे बुलंद करते हुए एहतजाज किया और नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इस मौके पर यहां बड़े बड़े समाजी सियासी शख्सियात को देखा गया। साथ ही रोजा पुलिस स्टेशन के साथ साथ शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में इस गुस्ताखी रसूल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। कर्नाटका अक़लियती व बहबूद वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान ने HHS और HMS कॉम्प्लेक्स पार्किंग लॉट के संग बुनियाद के कामों के तक़रीब का इफ्तिताह किया। जी नाज़रीन, हज़रत हमीद शाह और हज़रत मुहीब शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह और अलाइड वक्फ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से कल सुबह 10 बजे HHS और HMS कॉम्प्लेक्स पार्किंग लॉट कब्बनपेट मेन रोड बैंगलोर के संग बुनियाद रखने के काम को बराए औक़ाफ़ व अक़लियती बहबूद वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान के हाथों अमल में लाया गया। जी हाँ, इस बेहतरीन संगे बुनियाद के तकरीब में सदारत के फ़राइज़ को K अनवर बादशाह साहब ने अंजाम दिया और इस प्रोग्राम में मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, खतीब व इमाम जामिया मस्जिद बैंगलोर ने बड़े ही प्यारे अल्फाजों के साथ दुआ फरमाई। इसी तकरीब से खिताब करते हुए BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना और वक्फ के डेवलपमेंट के तहत अच्छे कामों को अंजाम देना बेहद ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आने वाली नस्ल को इससे फ़ायदा पहुँचे और आवाम का भला हो। लिहाजा इसी के मुतालिक वो आला हकाम के साथ मिलकर लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं और जगह जगह पर वक्फ अदालत रखते हुए वक्फ के मसलों को हल करने की भी पूरी कोशिशें की जा रही है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।